عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کی کتاب بہارستان اردو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا جو پہلا سبق ہے جس کا عنوان حمد ہے، اور اسی حمد کی جو یہ نظم ہمارے سامنے ہے اسی کی تشریح کرنے ہم جا رہے ہیں۔ لیکن حمد کی تشریح کرنے سے پہلے مناسب یہی ہوگا کہ کیونکہ یہ حمد کا تعلق ایک نظم سے ہوتا ہے، یعنی حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں صرف خدا تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسری نظم بھی کبھی ہمارے سامنے ہوتی ہے جس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ نعت سے مراد ہے ایک ایسی نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صورت میں سے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو اسی طرح تیسری نظم کبھی ہمارے سامنے ہوتی ہے منقبت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی بزرگ ولی کی تعریف درج ہوتی ہے۔ لیکن حمد کی تشریح کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے نظم کی ہی جانکاری پہلے آپ تک پہنچاؤں۔ تو یوں تو ہر موزون کلام کو نظم کہتے ہیں، یعنی عام اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اسالیب ہیں جس میں کسی موضوع پر ربط اور تسلسل سے اظہار خیال کیا گیا ہو۔ تو اس اعتبار سے غزل کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مثنوی، یہ جو باقی اصناف سخن ہیں وہ بھی اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں نظم کا زیادہ رواج تھا، اور نظم کے اپنے اصول اور قواعد تھے جن کے تحت کوئی شاعر طبع آزمائی کر سکتا تھا، لیکن اس کو ان قواعد اور ضوابط کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور انہی قواعد اور ضوابط کے تحت اس کو طبع آزمائی کرنی پڑتی تھی۔ تو اس میں سے کچھ ایسی تھی جن کو ترجیح بند، مخمس، مسدس وغیرہ کی حیت ہوتی تھی، اور زمانے کے اعتبار سے ہر ایک موضوع کو خاص موقع پر اہمیت بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اقتصادی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات تبدیل ہوتے گئے، تو نظم میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، انہوں نے پچھلے صدی میں اس جدید نظم کا آغاز کیا، اور اب ہمارے پاس نظم کی کئی قسمیں آئیں: پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، نثری نظم۔ پابند نظم وہی نظم ہے جس میں پرانے بندے ٹکے اصولوں کی پابندی ہوتی ہے، قافیہ اور ردیف کی پابندی ہے، مصرے برابر ہوں۔ لیکن نظم معرہ میں قافیہ کی کوئی پابندی نہیں، باقی ردیف اور مصروں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ ایسی نظموں کو نظم بے وقفہ اور نظم معرہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آزاد نظم جو ہے اس میں نہ قافیہ کی ضرورت ہے نہ ردیف کی، بلکہ
वजन का होना जरूरी है। मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं और नसरी नज़म तो नसर की ही तरह लिखी जाती है। ये थी आपको नज़म के बारे में जानकारी, ताकि अगली क्लासों में जाकर आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगी। अब मैं शुरू करता हूं आपकी बहारिस्तानी उर्दू से वो नाज़म, उसकी तशरी, जिसका अनवान है हमद। हमद कहते हैं तारीफ को, खुदा की तारीफ को, जिसमें खुदा की तारीफ हो। तो हमद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें सिर्फ खुदा की ही तारीफ होती है। खुदा की तारीफ के अलावा और किसी की तारीफ नहीं होती है। उसी की शान को बयान किया जाता है, उसी की ताकत को बयान किया जाता है। तो हमारे सामने में जो ये हमद की नज़म है, इसकी हैयत है मुखम्मस की। और मुखम्मस एक ऐसी नज़म होती है जिसके 5 मिसरे होते हैं। पहले 4 मिसरे अलग काफिया और रदीफ के होते हैं, और आखिरी मिसरा जो होता है वो अलग काफिये का होता है। तो पहला वाला बंद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हमदो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, ऐ रब हर्दुल आलम दोनों जहां के वाले, बिन मांगे देने वाले अर्शो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। ये था पहला वाला बंद, जिसकी तशरीह मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। हमदो सना हो तेरी, तारीफ है सिर्फ उस रब की, सिर्फ आपकी तारीफ, आप ही तारीफ के काबिल हैं। कोनो मकान वाले, क्योंकि आप ही आसमानों के भी मालिक हैं और जमीन के भी मालिक हैं। आपकी तारीफ, आप तारीफों के काबिल क्यों, आप जमीन के भी मालिक हैं और आसमान के भी मालिक हैं। रब्बे हर्दु आलम दोनों जहान वाले, आप तो पालनहार हैं इस दुनिया के भी और उस दुनिया के भी। यानी जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया के मालिक भी आप हैं, और जिस दुनिया में जाने वाले हैं उस दुनिया के भी मालिक आप हैं। और आपकी कुदरत ऐसी मेहरबान कुदरत है, बिन मांगे देने वाले। आप बगैर मांगने के लोगों की जरूरियात को पूरी करते हैं। अर्शो कुरान वाले, अर्श भी आपका ही है और कुरान भी आपका ही है। यानी आप अर्श के भी मालिक हैं, कुरान के भी मालिक हैं। बिन मांगे अपने मखलूक की जरूरियात को पूरे करने वाले हैं। गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले। अब जितने भी शान शौकत वाले लोग दुनिया के अंदर हैं, वो सब के सब आपके दर के सामने सजदा रेज होते हैं, और आपकी बड़ाई का एतराफ उन सब को है, आपकी कुदरत का एतराफ उन सब को है जो जितने भी शान शौकत वाले इस दुनिया में हैं। बेशक रहीम है तू, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि तू रहम करने वाला है, तू इंसानों को नवाजने वाला है, इंसानों की गलतियों को माफ करने वाला है। और दूसरी बात है कि आपकी खुदाई की निशानियों में से रहमत एक निशानी है। रहमत आपकी एक निशानी है। फिर दूसरा बंद शुरू करते हैं। योमे जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है, यानी तू कयामत का भी मालिक है और हमें पैदा करने वाला भी है। यानी शायर अपने रब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे रब, तू तो कयामत का भी मालिक है और तुमने हमें भी पैदा किया है, हमारा पैदा करने वाला भी तू ही है।
सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है, और तुम्हारे दर पर सजदा रेज होते हैं, हमें सिर्फ आपकी ही तलाश होती है। आपकी तलाश के बगैर हमें और किसी की तलाश नहीं है, और आपके दरवाजे पर हम सजदा करते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही सजदों के काबिल हैं। इमदाद तुझसे चाहे सबका सहारा तू है। हम आपसे ही इमदाद मांगते हैं, क्योंकि इमदाद करने वाला सिर्फ आप ही है। आपसे ही इमदाद चाहते हैं, क्योंकि इमदाद करने वाला सिर्फ आपकी जात है। आपकी जात के बगैर कोई मदद करने वाली जात दुनिया के अंदर नहीं है। तेरी ही बारगाह में बस एक आरजू है, हमें एक इल्तिजा है, एक तमन्ना है, एक आरजू है आपकी बारगाह से। और वो आरजू क्या है? रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले, हमें सीधा रास्ता दिखाना। जिस रास्ते पर परहेजगार लोग चल पड़े या चला किए, वही रास्ता हमें दिखाना। यानी शायर अपने रब से एक इल्तिजा करता है, एक आरजू रखता है कि मेरे रब, हमें आपसे एक आरजू है कि हमें सीधा रास्ता दिखाना, वो रास्ता जिस पर बुजुर्गानी दीन चला किया करते थे। इसी तरह इसका जो तीसरा बंद है, वो तीसरा बंद है और रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम। तो शायर अपने रब से मुखातिब होकर इल्तिजा करता है कि हमें वही रास्ता दिखाना जिस पर चला किए हैं परहेजगार आलम। दुनिया के जितने भी परहेजगार लोग थे और उन परहेजगार लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया था और जिस रास्ते की तरगीब आपकी रहमत ने उनको दी थी, हमें भी उसी रास्ते पर चलाना। ये है शायर की इल्तिजा और आरज़ू, और हर एक की इल्तिजा और आरज़ू भी यही होगी। नियामत थी जिनको मिलते तुझसे निगार आलम, और जिन लोगों के आपके दरबार से नियामतें अता हुआ करती थी, और नाम जिनका अब तक है यादगार आलम, और जिनका नाम अब तक दुनिया में जिंदा है, हमें उन्हीं के रास्ते पर चलाना। इन्हें शायर अपने रब से ये इल्तिजा करता है कि हमें वही रास्ता दिखाना जिस पर परहेजगार लोग चला किए और जिनको आपके दरबार से नियामत अता होती थी, और जिनका नाम अब तक परहेजगारों की परहेजगारी की वजह से दुनिया में मशहूर है। तेरी नजर में ठहरे जो इज्जो शान वाले, और आपकी नजरों में जो इज्जत वाले और शान वाले थे, हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चलाना। ये थी शायर की एक आरज़ू और एक तमन्ना। और आखिरी बंद है इसका, मातूब हैं जो तेरे ऐ खालिके यगाना। यानी जिन लोगों पर आपने अजाब नाजिल कर दिया, शायर अपने रब से कहता, मुखातिब होकर इल्तिजा करता है कि जिन लोगों को आपकी दरबार से, आपकी बारगाह से अताब नाजिल हुआ, गुमराह हुए, जो तुझसे आए साहिबे जमाना, आए तमाम जमाने के मालिक, दुनिया के मालिक, उकबा के मालिक, जो आपके रास्ते से गुमराह हो गए हैं, जिनको आपकी तरफ से अजाब नाजिल हुआ है, हम आजिजों को या रब उनकी न राह चलाना। तो हमारी एक इल्तिजा है, हम आजिज हैं, मिस्कीन हैं,
ہم مسکینوں کو ان کے راستے پر نہیں چلانا جن کو آپ کا عذاب نازل ہوا، جو آپ کے راستے سے گمراہ ہوئے، ہمیں ان راستوں پر نہیں چلانا۔ کر رحم اتنا اب تو اے زور ناتوانا، اور ہم پر اب تو اپنا رحم اپنا کرم فرما۔ مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے، اے آسمان کے مالک، ہماری یہ دعا قبول کرنا۔ باقی والسلام۔